Good morning to all of you. So in last class, we have finished the discussion about Khilafat movement. Completed or not? Completed? What was the Khilafat issue? We all know. Okay. And there were suggestions from Gandhi. Gandhi was the chairman of the Khilafat committee. Gandhi was associated with the prominent Muslim leaders who were active during this Khilafat movement. And it was suggested that, okay, the nature of this movement should be changed. Got it? It should be transformed into an all India movement. Basically, that is the beginning of non-cooperation of movement. We cannot say that Khilafat movement is equal to non-cooperation movement. ऐसा नहीं है, right? But we can say that yes, Khilafat movement ने क्या किया? It consolidated and united Muslim masses for one cause. And they are fighting with British Raj. And there are various other groups also who are dissatisfied with the British Raj. So obviously, it is a brilliant idea. Clear? That if various groups are dissatisfied, so we should unite and fight for a greater cause. Okay, that is the cause for Swaraj. And in this way, this movement is diluted. Okay. Yes, Aswini is asking why Gandhi did not get support from INC. Regarding what? Regarding Khilafat movement. Yes, Ashwini, is it your question? Are you asking about Khilafat? Sir, like in previous moments when Chivo Gandhi started, he did not get a support from INC. What was the main reason that they did not support? But Exactly. later, There is a very clear argument for this, and the argument is I have already used a word that is formative stage of Gandhi. Got it? Gandhi was doing regional experiments. Gandhi was becoming popular among the masses. It was the time of his struggle. He was trying to understand the nature of Indian problem. He was also associated with Indian National Congress. But there were many other leaders who were much prominent than Gandhi. Got it? So your voice will be heard, but it will take time. Is it clear? Okay. This is the simple idea. Okay. And many other prominent leaders of Indian National Congress, okay, they also did not came in support of Rowlatt Satyagraha. We can say that Gandhi must have tried Indian National Congress को support करना चाहिए. Okay. But Indian National Congress did not do that. Okay. जबकि Rowlatt Satyagraha में they were criticizing, but as an official platform it was not used. INC was criticizing Rowlatt Act. Many leaders of Indian National Congress were not agree with the Rowlatt Act, Rowlatt Committee recommendations. Clear? उनका था, but एक होता है ना कि organization support, that's missing. Okay? And Gandhi had started the satyagraha alone. मेरी बात समझ गए? For example, I am teaching these classes. These are my individual efforts. ठीक है? A time will come when many organizations will come and ask me to join their organization. ठीक है? This is the same thing. This is the individual state. At individual level you struggle. Got it? But a time will come when the people will recognize you. The same happened with the Gandhi also. That he was already popular, but he came from South Africa. He was not popular in national politics. ठीक है? I was never popular on online. मुझे online कभी मैंने पढ़ा ही नहीं, मजा नहीं आता था, right? But when I am struggling, a time will come when I will be a little bit confident in teaching online. थोड़ा बहुत confidence आया है, थोड़ा और confidence आ जाए, right? So the same happened with Gandhi also. ठीक है? तो इसका कोई ऐसा मतलब फिक्स आंसर नहीं है, but we can have different assumptions. Got it? Yes, Aswini? Okay. Now we are coming to this point, that is non-cooperation movement. Today we are going to start this topic, and this is very important topic. और घबराना नहीं है, revolutionary अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? I will discuss each and every revolutionary in detail. So here we are doing one part, that is role of INC and role of Gandhi. ठीक है? तो ऐसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा. So read this non-cooperation movement. So today we have to discuss this topic, non-cooperation movement. That is the topic that we are going to discuss today. Okay. The time period is 1920 to 1922. तो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक के साथ. ठीक है ना? तो आपको एक बेटर आइडिया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ.
पहले के कौन कौन से टॉपिक्स कनेक्ट कर सकते हो? तो वन यू कैन कनेक्ट इज व्हाट? राउलेट सत्याग्रह, ठीक है, बिकॉज देर वर dissatisfaction, there was already simmering dissatisfaction from this Rowlett Act recommendations. Dissatisfaction था ना. दूसरा we can connect it with dissatisfaction from जालियांवाला मैसेकर. देखो बार बार आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए स्टैटिक हो जाता है, ऐसा नहीं. यू कैन कनेक्ट. लोग डिससेटिस्फाइड थे कि नहीं जालियांवाला मैसेकर की वजह से? हाँ डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है. तीसरी बात क्या है कि जो एक्ट ऑफ 1919 था, इसने क्या किया था? What had this? Was it successful in fulfilling the, you can say that, aspirations of the people, political aspirations of INC? No. तो इससे भी डिससेटिस्फेक्शन था. और किस बात से डिससेटिस्फेक्शन था? तो एक और पॉइंट रिलेट कर सकते हो कि पोस्ट वॉर क्राइसिस, इसे भी हम रिलेट कर सकते हैं. पोस्ट वॉर क्राइसिस दैट इज 1914 टू 1918, इससे भी रिलेट कर सकते हैं. गॉट इट? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी 1885 में, एंड आफ्टर दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट वेरी मच सेंसिटिव टू द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ आईएनसी एंड इंडियन पीपल. एक डिससेटिस्फेक्शन इससे भी था. अब एक मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन है यार. देयर इज अनदर टर्म दैट इज व्हाट? मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन. और मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन का इशू क्या है? दैट इज कैलिफेट इशू. सो देयर इज मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन ऑन दिस इशू ऑफ कैलिफेट, ठीक है, खलीफा वाले मुद्दे पे मुस्लिम डिससेटिस्फेक्शन. And what happens? This Muslim dissatisfaction on the issue of caliphate led to the beginning of Khilafat movement. ये खिलाफत मूवमेंट हो गया. That is 1919-22. हम इसको 24 यहाँ लिखा, क्यों लिखा? You all know this, ठीक है ना? This is the time period of NCM. I have already discussed why I am writing years like this. So there was already Muslim dissatisfaction. और इसके पहले क्या हो रहा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले formative stage of Gandhi in India. It means that Gandhi was already an international leader. Gandhi was already an international leader. But अभी वो नेशनल लीडर नहीं बन पाए थे, right? So after this, when Gandhi came to India from South Africa, so he did some regional experiments. In this way, he emerged as a regional leader. Regional leader बने गांधी. And Gandhi started getting the support of the masses. देखो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना, आप कौन हो ये मायने नहीं रखता, आपके पीछे लोग कितने खड़े हैं ये मायने रखता है. गॉट इट? सो सडनली टेक एन एग्जांपल दैट आकाश बिकम्स पॉपुलर. आप कहाँ? महाराष्ट्र के हैं आकाश, ओके. सडनली आकाश बिकम्स पॉपुलर इन महाराष्ट्र. 10,000, 10 lakh, 20 lakh people, okay. Now they are big fans of Akash. 30 lakh people are big fans of Akash. पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही आपके घर पहुंच जाएंगे, आओ भैया हमारी पार्टी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी बात आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को. गॉट इट? ओके. सो द सेम हैपेंड विद गांधी. गांधी पहले आईएनसी से जुड़े हुए थे, बट इन चंपारण ही बिकेम पॉपुलर अमंग द पीजेंट क्लास. खेड़ा पॉपुलर अमंग द, ओके, पीजेंट क्लास. अहमदाबाद पॉपुलर अमंग द वर्कर्स, पॉपुलर अमंग द बिजनेस क्लास. यानी क्या गांधी मास लीडर बन रहे थे? यस. इन दीज ईयर्स गांधी इमर्ज्ड एज मास लीडर. गांधी तो इमर्ज कर गए. कैसे? मास लीडर के रूप में इमर्ज कर गए. गांधी इमर्ज्ड एज मास लीडर. एंड बाय राउलेट सत्याग्रह गांधी's पॉपुलैरिटी वाज ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी. राउलेट सत्याग्रह से गांधी की पॉपुलैरिटी क्या हो गई? ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी. और जालियांवाला मैसेकर होगा तो कौन सा टॉपिक वायरल हो जाएगा उस समय? राउलेट सत्याग्रह. राउलेट सत्याग्रह वायरल होगा तो कौन सी पर्सनालिटी वायरल होगी? गांधी. गांधी बिकेम ऑल इंडिया पॉपुलर, ठीक है. So this is happening that Gandhi's popularity is increasing due to this Rowlatt Satyagraha. Now Gandhi is popular among Indian people. पहले साउथ अफ्रीका में वो क्या कर रहे हैं ये बात वही समझ पाएगा जो एजुकेटेड क्लास है. मेरी बात समझो. आम आदमी नहीं जानता कि गांधी कौन है और साउथ अफ्रीका में जाके क्या कर रहे हैं. हो सकता है कि इन कलकत्ता, इन बॉम्बे, इन मद्रास, द एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स मस्ट बी नोइंग, जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि गांधी इज इन साउथ अफ्रीका, ही इज डूइंग गुड वर्क, लेकिन आम आदमी गांधी के बारे में नहीं जानता था. चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा एंड राउलेट सत्याग्रह से आम आदमी ने गांधी के बारे में जाना. गांधी बिकेम पॉपुलर अमंग द मासेस. और खिलाफत मूवमेंट से गांधी बिकेम पॉपुलर अमंग द मुस्लिम्स. ध्यान से समझना है इसको. बाई खिलाफत मूवमेंट गांधी बिकेम पॉपुलर अमंग द मुस्लिम्स.
और मुस्लिम्स का कॉन्फिडेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। ध्यान से समझो इस बात को। तो जैसे ही गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन, मतलब ज्वाइन तो ऑलरेडी किया था, बट गांधी जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टेड मूवमेंट को लीड करेंगे, तो कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी विल थिंक व्हाट, कि लोगों का सेंटिमेंट, मुस्लिम पीपल का सेंटिमेंट किसके फेवर में आ जाएगा, समझ गए पॉलिटिक्स, कि मुस्लिम पीपल अगेन विल गेन देयर कॉन्फिडेंस, फेथ एंड सपोर्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, इतनी सी बात समझो। ये अलग मुद्दा है कि आफ्टर 1885 व्हाट हैपेंड, बहुत बात जो मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम सिनोनिमस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। ध्यान से समझना, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को या इंडियन नेशनल मूवमेंट को, दोनों का मतलब एक ही है। आफ्टर 1919-20 व्हाट इज हैपनिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इक्वल टू इंडियन नेशनल मूवमेंट इज इक्वल टू गांधी। इसका मतलब कांग्रेस, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कांग्रेस एक केवल पॉलिटिकल पार्टी थी कि भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी 1947। Was it only a political party or was it a national heritage for India? It was a national heritage for India because it represented, or it just gave direction to the national movement of India. So was it logical to allow the continuance of Indian National Congress as a political party in independent India? क्या ये लॉजिकल था इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी आगे कंटिन्यू होने देना? नहीं। आजाद भारत का सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा धांधली क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी आगे कंटिन्यू होने देना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, ये सबसे बड़ा ब्लॉट है। दिस शुड नॉट बी डन। गांधी ने पहले कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी शुड बी डिसकंटिन्यूड, एक नई पार्टी बननी चाहिए, नई पार्टीज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा पॉलिटिक्स में, ठीक है, और लोगों को अपना ओपिनियन बनाने का मौका मिल पाएगा। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ही चुनाव लड़ जाएगी, तो आने वाले 15, 20, 25, 30 साल तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं? तो ये बताओ, अनड्यू एडवांटेज मिला कि नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को? सो इट शुड नॉट बी डन। तो देखो, वी शुड डेवलप अ क्रिटिकल आउटलुक। जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोल को हम प्रेज कर रहे हैं, वहां कहीं पे हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। वी मस्ट हैव अ क्रिटिकल आउटलुक। इट डज नॉट मीन, ठीक है, कि हम किसी पार्टी के खिलाफ हैं। वी शुड लर्न टू रेज क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस पूछ कब पाओगे आप? क्वेश्चन कब पूछ पाओगे? जब आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ होगी। और जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे, तो एक कहावत है, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, ठीक है? तो उसी तरह से लड़ते रहोगे जैसे लोग नेशनल मूवमेंट की इश्यूज को लड़ते रहते हैं लेके। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट व्हाट इज हैपनिंग, गांधीज पॉपुलैरिटी इज इंक्रीजिंग। और क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस इस पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहेगी? भाई, मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाले 2 साल में 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, बड़ी से बड़ी कोचिंग मेरे पास आएगी कि मेरे साथ आप जुड़ जाओ। लेकिन अगर 1,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर ना हो, तो आने वाले 2-3 साल में कोई नहीं आएगा पूछने की कौन हो भाई, हु इज सौरभ गोस्वामी? नो वन विल आस्क। सो इट्स ऑल अबाउट द पॉपुलैरिटी, मास पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्सन, मास पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी। ये बात समझना। इसीलिए अपने आप अपनी यूटिलिटी हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो। पीपल विल रन आफ्टर यू। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी पहचानती है। आप जिस दिन आईएएस बन जाओगे, लोग आपको अचानक रेस्पेक्ट क्यों देने लगते हैं? आप हो तो वही, यू आर द सेम पर्सन। यस, अश्विनी, आशिका, बेजी, शताक्षी, आप हो वही, बट द पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू बिकॉज आपने क्या की है, अपनी यूटिलिटी बढ़ा ली है। ओके, सो डू दैट। गांधी इज डूइंग द सेम थिंग। गांधी वही काम कर रहा है। नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होगा, देखो। खिलाफत कमिटी चेयरमैन, गांधी इज द चेयरमैन ऑफ खिलाफत कमिटी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। गांधी सेड दैट if INC will support Muslim cause, if INC will support Muslim cause, so this is a golden opportunity for Indian National Congress to gain the support and confidence of Muslims. INC will say no. Prominent leaders of INC will say no. They will say that how we can support a particular cause that is related with a particular religion, and that cause is to what? वो cause भी क्या है?
वो कॉज भी रिग्रेसिव है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बताओ, लॉजिकल है कि नहीं? कॉज प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है? इट्स अ रिग्रेसिव कॉज. तो INC will say that no, we will not support. We will not support a particular class issue, and this issue is regressive too. This issue is regressive too. Then Gandhi will say that we are not asking you to support caliph issue. What we need is that, okay, if a new movement is launched, if a new movement is launched by a new name, by a new name, okay, and we will fight for what? Swaraj. Okay, we will fight for Swaraj, and the common enemy of different groups in India will be British Raj. ये सब लड़ाई किसके खिलाफ है? ब्रिटिश राज के खिलाफ. And we will fight for Swaraj. Okay, and then Muslims will come and support us because they are also fighting with British Raj. We are also fighting with British Raj. So I am successful in convincing the Muslim masses. ये वही टाइम है जब गांधी को क्रिटिसाइज करेंगे. INC के कई बड़े बड़े लीडर्स हैं. देयर आर सो मेनी prominent leaders of INC who are not in support of Gandhi. They will say that Gandhi Baba, don't do this. Okay, don't bring particular class issue. ये mix करने की जरूरत नहीं है. But Gandhi will insist, and many prominent leaders of INC will oppose, and many other leaders will come and support the idea of Gandhi. दोनों होगा. कुछ लोग अपोज करेंगे और कुछ लोग गांधी के आइडिया को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस क्लास, feudal class in INC, zamindars, capitalists, they will come and support the idea of Gandhi. वो गांधी के आइडिया को सपोर्ट करेंगे. कुछ लोग नाराज हो जाएंगे गांधी से. फॉर एग्जाम्पल एनी बेसेंट विल से मैं कांग्रेस छोड़ रही. मोहम्मद अली जिन्ना, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना? एक स्टोरी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेंटेन करेंगे. ही विल ऑल्सो क्विट इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ेंगे. अच्छा, ये मुद्दा बड़ा अजीब है कि मुस्लिम कॉज को सपोर्ट करने जा रहे हैं और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ रहा है. उनको तो खुश होना चाहिए कि गांधी बहुत अच्छा आइडिया लेके आया है. ओके, सो दिस इश्यू इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मोहम्मद अली जिन्ना. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूँ जो आप शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेना. मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ऑल्सो अ लॉयर. ठीक है ना, ये भी लॉयर थे, बैरिस्टर. ठीक है, लॉयर, बैरिस्टर. कहा इन्होंने पढ़ाई करी? इंग्लैंड में पढ़ाई करी. ठीक है. एंड व्हेन ही केम टू इंडिया ही स्टार्टेड प्रैक्टिस लॉ एंड ही वाज एन एक्सीलेंट लॉयर. हिज लीगल प्रोफेशन वाज वेरी मच सक्सेसफुल. ठीक है, बड़े वकील थे. ठीक है, उनकी वकालत भी ठीक ठाक चल रही थी. ही वाज गुड इन हिज लीगल प्रोफेशन. He came to India, and when he came to India, okay, 1906 was the year when Muhammad Ali Jinnah joined Indian National Congress. 1906 was the year when he joined Indian National Congress. जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है. 1906 is the year when Jinnah joins Indian National Congress, and 1906 the year is the year when which party was formed? मुस्लिम लीग. ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और ये केवल पढ़ के अपने आप तक नहीं रखना है. यू विल डिस्कस नेशनल मूवमेंट एपिसोड्स विद अदर पीपल. दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये केवल एग्जाम का विषय नहीं है. जो मैं बता रहा हूं आप फर्दर अपने नॉलेज को एनलाइटन करोगे एंड यू विल डिस्कस. एंड इफ यू हैव डाउट्स और अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एग्री विथ मी, देन यू शुड आस्क क्वेश्चंस. मेरी बात समझ गया ना? ठीक है. अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट कर लेना कि मैं जो बता रहा हूं वो बात आप मान लो. ये एक्सपेक्टेशन दुनिया की सबसे क्रूरतम एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, नो वन शुड एक्सपेक्ट कि मैं जो कह रहा हूं मेरी बात से आप सहमत हो जाओ. इट डिपेंड्स ऑन योर लॉजिकल सेंस. ठीक है ना? तो हो सकता है आपके लॉजिकल सेंस से मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए. सो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट. सो ऑलवेज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस. 1906 is the year when a party is formed and the name of this party is AIML, All India Muslim League. 1906 is the year when Indian National Congress as a political party was formed. Sorry. Muhammad Ali Jinnah joins Indian National Congress. इसके बाद देखो, after this, Jinnah is a Muslim person, और मैं पहले ही कह चुका हूं Indian National Congress was all class party.
ये ऑल क्लास पार्टी थी, ठीक है। इट वॉज नॉट पार्टिकुलर हिंदू क्लास पार्टी और मुस्लिम क्लास पार्टी, इट वॉज ऑल क्लास पार्टी, ये ऑल क्लास पार्टी। नाउ what will happen? Jinnah's popularity in Indian National Congress will kept on increasing. Will kept on increasing. जिन्ना की पॉपुलैरिटी इंडियन नेशनल कांग्रेस में लगातार बढ़ रही है. Will kept on increasing. On the other side, what happens? By the Act of 1909, what we see, British announced to give SES for Muslims. ये 1909 में हुआ था, announced to give SES for the Muslims, and it was the teeth of communal dragon. ये भी आपको पता है, it was like the teeth of communal dragon, ठीक है, ये communal dragon का teeth है. This was like, you can say that seeds of Indian communalism were sown here. Seeds of Indian communalism were sown here. संप्रदायवाद के बीज बो दिए गए इस समय, हिंदू मुस्लिम जो मतलब लड़ाई करवाने की शुरुआत करी गई 1909, ठीक है. नाउ what was the stand of Indian National Congress after 1909 towards this SES issue? No rejection to this demand, यही था ना, it was the stand. Now INC will think to use मोहम्मद अली जिन्ना. अब INC ये सोचेगी कि हम क्या कर सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का यूज कर सकते हैं, because मोहम्मद अली जिन्ना was a liberal Muslim face, liberal Muslim, he was a progressive Muslim, western educated person, ठीक है. कॉम्युनल नहीं थे जिन्ना, ना उनकी स्पीचेज से ना उनकी बातों से, है ना, कॉम्युनलिज्म नहीं झलकता था. तो आईएनसी ने क्या किया, आईएनसी स्टार्टेड प्रोमोटिंग मोहम्मद अली जिन्ना एज द प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर, लिबरल मुस्लिम लीडर, ठीक है ना. सो ही बिकेम द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. मुस्लिम लीडर्स में पोस्टर बॉय कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मोहम्मद अली जिन्ना. ये दूसरी मजेदार बात है, राइट दिस पोस्टर बॉय, ठीक है, लाइक राइट दिस पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जैसे कोचिंगों में भी होता है ना, कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं जो पोस्टर बॉय होते हैं, चुन्नू मुन्नू टाइप, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना वाज द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब आईएनसी ने प्रमोट करना शुरू कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना को. आफ्टर दिस मोहम्मद अली जिन्ना was asked by Indian National Congress to join Muslim League also. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि जाके मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लो, ठीक है. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा रिजाइन करना पड़ेगा क्या आईएनसी से. आईएनसी ने कहा नहीं नहीं, यहां रिजाइन नहीं करना, आप जाके मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लो और मुस्लिम लीग के अंदर जाके मुस्लिम लीग की जो रेडिकल मुस्लिम पॉलिटिक्स है इसको न्यूट्रलाइज करो. मेरी बात समझ गया ना, मतलब मुस्लिम लीग गलत रास्ते पे चल रही है, उसको सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, मोहम्मद अली जिन्ना को. एंड व्हाट हैपेंड, ओके, on the suggestions of prominent Indian National Congress leaders, 1913 is the year when Muhammad Ali Jinnah joined. 1913 is the year when Muhammad Ali Jinnah joined Muslim League. इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग. इसका मतलब क्या है, डिड ही रिजाइन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, ही डिड नॉट रिजाइन. तो देखो 1906 onwards मोहम्मद अली जिन्ना was member of Indian National Congress. 1913 onwards, at the same time, Muhammad Ali Jinnah was the member of Muslim League. ठीक है, it means at the same time he was member of Indian National Congress also, and at the same time he was member of Muslim League also. Muhammad Ali Jinnah was the poster boy of Indian National Congress, and Muhammad Ali Jinnah joined Muslim League to neutralize radical Muslim politics of Muslim League. मुस्लिम लीग के रेडिकल मुस्लिम पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए गए, ठीक है. एंड नाउ द सिचुएशंस विल चेंज. गॉट इट, हाउ द सिचुएशंस विल चेंज, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब इसी फेज में देखो व्हाट हैपेंस.
This is the time when Gandhi's popularity will start increasing. 1917 Champaran, you all know. 1918 Ahmedabad. 1918 Kheda, right? 1919 Rowlatt Satyagraha. 1919 Khilafat movement. Here what is happening? Gandhi's popularity is continuously increasing. Increase हो रहा है और यहां आते आते गांधी की पॉपुलैरिटी किस क्लास में बढ़ने लगी? मुस्लिम क्लास. जामिया मिलिया इस्लामिया. गांधी. मेरी बात समझ गया ना? It means that now Gandhi is also taking the identity of a prominent Muslim leader. He was a Hindu. बन क्या रहे हैं वो prominent Muslim leader? एक टाइम आएगा कि गांधी will start playing the most important role in raising the issues of untouchables. सीडीएम के सस्पेंशन के बाद आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दलित थे इनके मुद्दे को प्रोमिनेंट तरीके से उठाया और उस समय गांधी की आइडेंटिटी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी बी आर अम्बेडकर के साथ. मेरी बात समझ गया ना? यहां पे क्या है? हु इज मुस्लिम फेस? मोहम्मद अली जिन्ना. एंड नाउ हु इज बिकमिंग न्यू मुस्लिम फेस? गांधी. दूसरा एपिसोड कहां आता है? 1930s. Who has become the face of socialism? Who has become the most popular revolutionary face in India? Bhagat Singh. Even more popular than Gandhi. पूना पैक्ट के बाद क्या हुआ ये आपको बताऊंगा. एक टाइम आता है कि बी आर अम्बेडकर एंड गांधी. बी आर अम्बेडकर इज द दलित लीडर. गांधी ऑल्सो इमर्जेस एज द दलित लीडर. ठीक है. तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं? अ टाइम विल कम when Subhash Chandra Bose is very popular in Indian National Congress and on the other side Gandhi will project Pattabi Sitaramaiya. मेरी बात समझ गया? A time will come when Sardar Vallabhbhai Patel is very popular in Indian politics and a time will come the same time Gandhi will project Jawaharlal Nehru. तो बात तो करनी पड़ेगी. ठीक है. हम ना किसी पार्टी के सपोर्टर है ना अपोज करते हैं बट डेफिनेटली वी विल डिस्कस. ठीक है. all the harsh realities of history. ठीक है. Everything we are going to discuss. ठीक है. So this point you have understood. Gandhi's popularity as a Muslim leader is now continuously increasing. और कौन प्रपोजल लेके आया है कि खिलाफत कॉज को सपोर्ट करे इंडियन नेशनल कांग्रेस? गांधी. मोहम्मद अली जिन्ना will say that no, this is not good. Finally, what is the stand of Indian National Congress? Indian National Congress will take this decision. पार्टी को तो पॉपुलर लीडर से मतलब है ना. गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई. INC will take the decision that we are going to start non-cooperation movement and who will be the leader? Gandhi will be leader. And Khilafat platform was utilized for non-cooperation movement. Then Muhammad Ali Jinnah will say ये एक्सेप्टेबल नहीं है. और गांधी के साथ कौन कौन से लीडर्स जुड़ गए थे? पहले बताया था आपको. खिलाफत में लीडर्स का नाम मैंने डिस्कस किया था. ऑल दीज लीडर्स वर द फैंस एंड फॉलोअर्स ऑफ गांधी. और जब गांधी पॉपुलर होंगे तो उनके साथ साथ कौन पॉपुलर होगा? इंपॉर्टेंट एसोसिएट्स ऑफ गांधी. सो विद द पॉपुलैरिटी ऑफ गांधी a complete new generation of Indian Muslim leaders are entering into Indian National Congress. अब मोहम्मद अली जिन्ना क्या हो गए? इनसिक्योर हुए, नाराज हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिया. कब छोड़ा? 1920s the year. So always remember, Muhammad Ali Jinnah joined in Indian National Congress in 1906 and 1920 he resigned from, got it? Indian National Congress. Resigned from Indian National Congress. Okay. Why? What is the reason? Write this. Reason for resignation. Reason for resignation. Write this. Muhammad Ali Jinnah was not fully agree with the Muhammad Ali Jinnah was not fully agree with the political campaign of Satyagrah and NCM. With the political campaign of Satyagrah and NCM. With the political campaign of Satyagrah and NCM. Okay. With the political campaign of Satyagrah and NCM from political platform of Indian National Congress. From political platform of Indian National Congress.
कोई ये कहता है क्या कि मैं इनसे बहुत इनसिक्योर हूं? ये कोई नहीं कहता। तो दिस इज व्हाट जिन्ना विल से, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है सत्याग्रह। Gandhi's ideas are completely nonsense. Why we are going to start, okay, non-cooperation movement? I don't understand the reason behind this. But what was the main issue? जिसको जिन्ना कह नहीं रहा है, वो मिर्जापुर का एक फेमस डायलॉग है ना, मिर्जापुरी मूवी थी ना, जिसमें एक कैरेक्टर है मुन्ना भैया, क्या कहता है वो? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हैं और कोई आपकी योग्यता को ना पहचाने। तो इन द सेम वे मोहम्मद अली जिन्ना की कंडीशन थी। तो उन्होंने कहा भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस में लग रहा है अपनी इज्जत रहने वाली नहीं है, तो छोड़ के कहाँ जाओ? मुस्लिम लीग। तो 1920 के बाद ही इज फुल टाइम मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग में कब से कब तक जुड़े रहे? तो 1906 टू 1947, मतलब जो भी टाइम है, ही वॉज कंप्लीटली एसोसिएटेड विथ मुस्लिम लीग। ठीक है। फिर दूसरा डायलॉग है, हमको चाहिए फुल इज्जत। और वो फुल इज्जत मुस्लिम लीग को कहाँ मिल रही थी? और मोहम्मद अली जिन्ना को कहाँ मिल रही थी? मुस्लिम लीग में। पूरा जलवा था इनका यार, तो मुस्लिम लीग चले गए। तो देखो गांधी के आने से नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे बदलाव होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द चेंजेस। मोहम्मद अली जिन्ना एपिसोड आई विल लेटर डिस्कस कि आफ्टर 1920 व्हाट विल बी द आउटलुक ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना का आउटलुक कॉम्युनल कैसे हो गया, गॉट इट, टू नेशन थियरी तक कैसे ये चले गए, ये सोचना बड़ा जरूरी है, और वो हम सोचेंगे। इट्स ऑल पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स है। जैसे आप में से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत कॉम्युनल होगा, जो मेरा खुद का परसेप्शन है कि नन ऑफ यू इज वेरी मच कॉम्युनल, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप चीजों की को काफी सेंसिटिव तरीके से लेते हो। लेकिन हो सकता है आज से 15 साल 20 साल बाद आप में से कोई बच्चा कट्टर हिंदूवादी नेता या कट्टर मुस्लिम नेता बन जाए। चांसेस है। क्यों भाई? पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो नई आइडेंटिटी कभी कभी गढ़नी पड़ती है। ठीक है। तो चांसेस है, माइट बी देयर आर द चांसेस, होता भी है, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। चलिए, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेट्स डिस्कस सम बेसिक आइडियाज अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो राइट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सम फैक्ट्स वी विल राइट फर्स्ट। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-22, 1920-22। वैसे देखो, when this movement was formally launched, okay, so the date will be 1st August 1920. So it started on 1st August 1920। ये 1st अगस्त 1920 को स्टार्ट, और जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फॉर्मल बिगिनिंग तिलक पास्ट अवे। फॉर्मल बिगिनिंग के साथ क्या हुआ? तिलक पास्ट अवे, तिलक की डेथ हो गई। और गांधी के बारे में मैंने बताया था दैट गांधी वाज एन एक्सीलेंट फंड रेजर आल्सो, चंदा इकट्ठा करने में एक्सपर्ट थे। ठीक है। और मूवमेंट चलाने के लिए चंदा चाहिए ही, यू नीड डोनेशंस। तो क्या बना दिया गांधी ने? गांधी फॉर्म्ड तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तिलक स्वराज फंड। और बताओ, तिलक वाज अ मास लीडर और नॉट? यस, आपको पहले बता चुका हूं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर वेरी मच पॉपुलर अमंग द मासेस। तो इस फंड में क्या होगा? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कम टाइम। तिलक स्वराज फंड, एंड दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस फंड का यूज होगा, दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस फंड का यूज भी होगा, दिस फंड विल बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट अब थोड़ी टेक्निकल चीजों पे चले जाते हैं। दैट meetings have been take place, everything has been decided, but whatever has been decided by the INC leaders, it must be approved from the congress session। congress session से इन सबको क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ऑफिशियली अप्रूव होना चाहिए। तो here the name of two congress sessions are important, right? This two congress sessions are important. One is Calcutta Congress session, Calcutta Congress session. These informations are information for prelims, and it was a special session। तो special session बताओ, will be held in the month of December or other than the month of December? Other than the month of December, so this month was
सितंबर, सितंबर 1920, यानी अगस्त में एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी कहो. बट इन सितंबर 1922, sorry 20, a special congress session was, okay, uh, summoned, and here, okay, issues will be discussed. यहाँ पे all the issues, all the issues regarding, all the issues regarding NCM will be discussed. Issues क्या हो सकते हैं? That what will be the objective, what will be the future program, what will be the strategies, how you are going to proceed this movement, यही सारी strategies होती हैं. जो लोग सपोर्ट करेंगे, जो दोज हु आर इन द फेवर विल वोट दैट हाँ हम गांधी के साथ हैं, एंड दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग इट विल अपोज. दिस विल टेक प्लेस, यही होगा. गॉट इट? नाउ इन द मंथ ऑफ दिसंबर रेगुलर कांग्रेस सेशन विल बी हेल्ड. नागपुर कांग्रेस सेशन, रेगुलर कांग्रेस सेशन विल बी हेल्ड. तो ऑब्वियसली एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो ये दिसंबर 1920 है. ओके. Now you can also write the name of presidents here. Here the president was Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai was the president. Special वाले में, regular वाले में regular congress session, right? Okay. C. Vijay Raghava Cheriar was the president. C. Vijay Raghava Cheriar was the president. ठीक है ना? सी विजय राघवा चेरियार वॉज द प्रेसिडेंट. आप समझ गए? ठीक है. यहां पे क्या होगा? ओके, यू कैन राइट हियर रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन, रेटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन. डिसीजन को का रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन विल टेक प्लेस, रेटिफिकेशन ऑफ द डिसीजन विल टेक प्लेस. अब मैं टॉपिक का ब्रेक डाउन कर रहा हूं. ब्रेक डाउन का मतलब इस कांग्रेस सेशन के अंदर घुस के डिटेल्स में पढ़ने की बजाय जो इश्यूज हैं उनको अलग अलग करके हम समझ लेते हैं, बिकॉज दैट इश्यूज वी कैन नीड इट फर्दर ऑल्सो. तो दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट. यू, आई होप यू कैन रिमेंबर दिस. नाउ व्हाट हैपेंस, लुक हियर, व्हाट विल बी डिस्कस्ड. क्या डिस्कस होगा? सबसे पहले डिस्कस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव. व्हाट विल बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. उद्देश्य क्या होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? ये तो सबसे पहले तय होगा ना. कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव होता है. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इट विल बी डिसाइडेड. तो हम किस बात को डिस्कस करेंगे? जो फाइनली अप्रूव हुआ उसको डिस्कस करेंगे. वही एग्जाम में आएगा भी. बीच में क्या डिस्कशंस हुए इससे कुछ खास लेना देना नहीं है. तो ऑब्जेक्टिव क्या था? राइट दिस. बताया भी है आपको. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएम? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. पहले कहीं मैंने डिस्कस किया था. बताओ ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्जैक्टली, टू अटेन स्वराज विद इन 1 ईयर. ठीक है, एकदम याद रखना है इसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट दिस. टू अटेन स्वराज, टू अटेन स्वराज विद इन 1 ईयर, टू अटेन स्वराज विद इन 1 ईयर. ठीक है ना, विद इन 1 ईयर. ये ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट है. दिस इज वन पार्ट, नॉट कंप्लीट पार्ट. यानी दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर फाइटिंग फॉर स्वराज इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद इन 1 ईयर. यहां पे हमने टारगेट भी फिक्स किया है कि वी विल अटेन स्वराज विद इन 1 ईयर. ठीक है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट? अब द प्रॉब्लम इज there are two definitions of Swaraj, so which definitions would be incorporated? Or Gandhi was a very smart politician. He will do what? Okay, combine both the two meanings of Swaraj. So write this. Gandhi successfully combined two meanings of Swaraj. Gandhi successfully combined two meanings of Swaraj. गांधी ने क्या किया? He successfully combined two meanings of Swaraj. और वो two meanings क्या हैं? तो देखो, गांधी said that स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लिखना. स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल. ठीक है. एंड स्वराज इफ नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख लो. इफ नॉट पॉसिबल, यानी इफ फर्स्ट
part of objective is not possible. तो if not possible, ये थोड़ा explanation के लिए ताकि आप समझ पाओ. If this objective is not fulfilled, if not possible, then Swaraj outside British Empire. Swaraj outside British Empire. ठीक है ना? यानी कि step A, this is step A, and this is step B. What does it mean? It means first we will fight for this objective, Swaraj within British Empire. लेकिन अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनेंगे, if British will not give, hello, am I audible now? No, not audible. Okay. तो इसको बहुत ध्यान से समझना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट आई से, गांधी सेड कि स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर, फर्स्ट वी विल फाइट फॉर दिस. लेकिन अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किस चीज के लिए लड़ेंगे? स्वराज आउटसाइड ब्रिटिश एम्पायर. ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट मॉडरेट मीनिंग. स्टेप वन इज व्हाट मॉडरेट मीनिंग. दिस इज मॉडरेट मीनिंग. दिस इज व्हाट मॉडरेट मीनिंग. एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट extremist meaning. This is what extremist meaning. First is moderate meaning and the second is extremist meaning. तो गांधी सक्सेसफुली कंबाइंड बोथ these two. तो क्या गांधी ने अपीस कर लिया मॉडरेट्स को भी और एक्सट्रीमिस्ट को भी? यस. ठीक है. एंड दिस इज द रीजन, देखो दिस पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द रीजन दैट, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ओके स्टॉप्ड विद द बिगिनिंग ऑफ NCM. Stopped with the beginning of NCM. This is one reason. एक रीजन ये भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज अब खाली हो गए थे तो उन्होंने सप्रेशन किया रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का. पहले वो इंगेज थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. एंड दिस इज ऑल्सो वन रीजन दैट रेवोल्यूशनरीज विल हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि गांधी बाबा शायद ये काम कर पाएंगे, तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर स्टॉप्ड. तो गांधी सक्सेसफुली कंबाइंड दीज टू मीनिंग्स ऑफ स्वराज. यही है गांधीयन पॉलिटिक्स. मेरी बात समझ गया ना? पॉलिटिक्स टू अकोमोडेट डिफरेंट आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. दोनों को साथ साथ लेके चलना. ठीक है. किसका रोल कहां बेहतर हो सकता है इस चीज को, ठीक है, समझ लेना. ओके. दिस इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाउ अच्छा देखो, हिंदूज मुस्लिम्स दोनों को एक साथ लेके आ गया कि नहीं गांधी? यस. मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स, yes. So Gandhi made politics what? More inclusive. Politics को क्या किया? More inclusive बना दिया. Got it? Okay. More participatory. जैसे कांग्रेस मेंबरशिप फी वाज वेरी हाई. गांधी सेड कि इस फी को क्या करो? कम करो. Got it? कांग्रेस प्रोविंशियल कमिटी शुड बी देयर. रीजनल लेवल पे हमको काम करना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे. तो तमाम तरह की ऐसी चीजें थी. देखो क्या होता है. फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग कोर्सेज ऑफ यूपीएससी हिस्ट्री. ठीक है. सो दिस विल बी अ सीरियस लिमिटेशन ऑफ माय प्रोडक्ट. पूछो कैसे? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, बट एट द सेम टाइम इफ आई स्टार्टेड टीचिंग नेट जेआरएफ फॉर हिस्ट्री, तो इससे क्या होगा? मेरी बात समझ गया ना? लार्जर ऑडियंसेस को आप क्या कर पाओगे? कैटर कर पाओगे, और वही लोग मेन स्ट्रीम से आगे आके क्या होंगे? जुड़ेंगे. जैसा नेशनल मूवमेंट का स्ट्रेटजी है वही आप यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द सेम थिंग. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कैटर द लार्जर ऑडियंसेस. आपको कोई अपना ऐसा कोई इमेज लेके नहीं चलना है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, हम तो नेशनल लीडर है. नहीं भैया, नेशनल लीडर तो आप तब तक नहीं बन पाओगे जब तक रीजनल लीडर नहीं बनोगे. तो कोशिश क्या होनी चाहिए? रीजनल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आना. इसके लिए यू विल हैव टू बी अ पॉपुलर मास लीडर, एंड गांधी वाज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग दिस आइडिया टू द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. उनको समझाया गांधी ने, कहा यार ऐसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी. नाउ द सेकंड पॉइंट इज राइट, व्हाट विल बी द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज. व्हाट विल बी द मेथड्स एंड strategies during non-cooperation movement. Methods and the strategies.
आप बताओ, दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रेट मास मूवमेंट ऑफ गांधी. इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट great mass movement of Gandhi. Non-cooperation movement is called first great mass movement of Gandhi. Here we have used one word, that is great. यहाँ पे कौन सा word use कर लिया? Great. Why? Was it the first mass movement? No. इसके पहले भी mass movement है. Which mass movement? Swadeshi movement. This was the first mass movement. First mass movement. This is first great mass movement. Why? There is a reason. And what is that reason? This mass movement is a controlled mass movement. Controlled mass movement. So this controlled movement is one method and strategy. कि हमें movement को क्या करना है? Controlled movement बना के रखना. This is one strategy. Controlled mass movement. The strategy of controlled mass movement. इसका मतलब how the mass movement will be controlled? If the people will get proper training in the arts of satyagraha. If the people will get proper training in the arts of satyagraha. अगर लोगों को सत्याग्रह के आइडिया के बारे में, सत्याग्रह के तरीकों के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, तो दिस माइट बी पॉसिबल. ये पॉसिबल हो सकता है. गॉट इट? एंड इन सत्याग्रह, व्हाट इज द cornerstone of this idea? So non-violence. Non-violence. Fighting for the truth. Persistence of truth is the core idea. Got it? Okay. And self-suffering is the choice of satyagrahi. Self-suffering. ठीक है? Not responding to any self-suffering. Self-suffering. This is the individual choice of a satyagrahi. Not responding towards any kind of violence. किसी भी तरह के हिंसा के खिलाफ तुमको नहीं बोलना है. ठीक है ना? Self choose and suffering. The best word will be self choose and suffering. Okay, these are the core ideas. तो बताया गया कि this non cooperation movement will be a controlled mass movement where we are going to use what? The techniques of non violence. ठीक है ना? And this non violence will not be compromised. ये compromise नहीं होगा. अच्छा, पहले से जो तरीके चले आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इन स्वदेशी मूवमेंट व्हाट वी सी, ओके, क्या क्या देखा था स्वदेशी मूवमेंट में? वो सारे आइडियाज लेके आओ. एग्जैक्टली. तो स्वदेशी, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी. यस, दिस विल बी देयर. प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ये होगा. स्वदेशी गुड्स, यस, स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करेंगे. इन स्वदेशी मूवमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करने से क्या आएगा? तो दिस विल ब्रिंग सेल्फ रिलायंस. इससे आत्मनिर्भरता आएगी. सेल्फ रिलायंस. गॉट इट? एंड ड्यू टू दिस सेल्फ रिलायंस, दिस विल इंश्योर द इकोनॉमिक फ्रीडम. ये किस चीज को इंश्योर करेगा? इकोनॉमिक फ्रीडम. एंड दिस is what? Non-cooperation movement. Our political Swaraj is what? The basically political objective. So here, this will help in ensuring economic freedom. Second, boycott. Boycott strategy will be used or not? Yes, boycott of goods. ये तो use होगा. And what about passive resistance? ये भी strategy था. स्वदेशी movement में passive resistance, this strategy will be used. ठीक है? Now, पैसिव रेसिस्टेंस मींस व्हाट? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. स्वदेशी मूवमेंट में पैसिव रेसिस्टेंस का यूज कैसे हुआ? वाज इट ऑफिशियली सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, अनऑफिशियल. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये क्या है? दिस प्लान इज ऑफिशियल. इट मींस दिस इज ऑफिशियली सजेस्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. राइट? दिस पैसिव रेसिस्टेंस, दिस इज हियर ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, that this is officially approved by Indian National Congress. The idea of passive resistance is officially approved by Indian National Congress. और passive resistance basically क्या है? ये boycott program है. But this is extensive boycott. Right? This passive resistance is what?
एग्जैक्टली दिस इज व्हाट एक्सटेंसिव बायकॉट. ये क्या है? एक्सटेंसिव बायकॉट. इज दिस एक्सटेंसिव बायकॉट अ काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन? है कि नहीं? तो ये अलग स्ट्रेटजी है कि नहीं? स्वदेशी मूवमेंट से बिल्कुल अलग हो गया कि नहीं? तो इस मूवमेंट का नाम इसी के बिहाफ पे रखा जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. मेरी बात समझ गया ना? सो दिस इज व्हाट एक्सटेंसिव बायकॉट. वी कैन ऑल्सो कॉल इट नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन, एक्सटेंसिव बायकॉट और नॉन कोऑपरेशन. ठीक है ना? नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेसिस्टेंस. और इसमें क्या है? बायकॉट ऑफ ऑफिसेस, बायकॉट ऑफ ऑफिसेस, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर्स, boycott of law courts, boycott of schools and colleges, boycott of offices, boycott of legislatures, boycott of law colleges, boycott of law courts, boycott of schools and colleges. ठीक है? Surrendering of titles will be one method or not? Yes. इसके पहले देखो यूज हुआ था in opposition to जालियांवाला मैसेकर. So you can write surrendering titles. Surrendering titles. ये भी क्या है? एक indication, hint है that we are doing non-cooperation with the evil. Surrendering titles. This will be one thing. Clear? These strategies will be used. Okay. Now, peaceful protest will be organized or not? Yes. ध्यान से समझना इस बात को. And when you will organize peaceful protest, the government authorities will allow you to do that or they will try to restrict. They will try to restrict. जालियांवाला मैसेकर क्यों हुआ था? कि लोगों को देखो, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट था. दैट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट. इट वाज नॉट अ वायलेंट प्रोटेस्ट. बट व्हाई जनरल डायर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पीसफुल मॉब? कि लोगों को डर लग जाए और इन फ्यूचर लोग क्या करें? पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए भी इकट्ठे ना हो. गॉट इट? एंड जनरल डायर सेड दैट इट वाज मच नीडेड स्टेप टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश राज इन इंडिया. ये बहुत जरूरी था. So these peaceful movements were also a threat for the existence of British Raj. आज भी देखो, अगर आपको कोई मास रैली करनी है तो यू विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ये उसी समय से चला रहा है. आप 1000 लोगों को लेके सड़क पे चलो बिना परमिशन के, दैट इज अनलॉफुल. ठीक है? नाउ विल द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और द मजिस्ट्रेट विल दे अलाउ यू टू हैव सच प्रोसेशंस? नो. तो you will have to defy laws in that sense. जैसे चंपारण सत्याग्रह was the first act of civil disobedience in India. So don't you think that in non-cooperation movement also limited civil disobedience will be used? Yes or no? Yes. देखो, non-payment of taxes will also come under the disobedience of civil law. But this is not used as a technique during non-cooperation movement. But लिमिटेड सिविल डिसोबीडियंस तो रहेगा ही, रहेगा ना? तो हमेशा याद रखना, इफ समवन आस्क यू दैट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और नॉट, यू विल से नो. कांग्रेस ने ये नहीं कहा था लोगों को कि यू स्टॉप पेइंग द टैक्सेस. ठीक है ना? यस, आकाश आस्क योर क्वेश्चन. आकाश. So maybe there are more chances that the government could be rebellious kind of thing. No, but Gandhi said na कि first we will do what? We will send petitions, we will send applications, we will ask your approval. You know, you say no, you are district magistrate, we will sit peacefully. हमने आपके ऑर्डर को क्या कर दिया? डिफाई कर दिया. क्योंकि हमने ये कहा कि हम पीसफुली वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस सत्याग्रह, पीसफुल सत्याग्रह, बट यू आर नॉट अलाउइंग. सो इन दिस केस वी विल नॉट, बताया ना, स्टेट लॉ एंड मोरल लॉ व्हेन दे विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट. तो सिविल डिसोबीडियंस तो होना ही होना है. बट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी नॉन कोऑपरेशन है. इसीलिए इस मूवमेंट का नाम क्या है? नॉन कोऑपरेशन. सो राइट दिस पॉइंट that non-cooperation, this was the most important strategy, and this is why the name of this movement is non-cooperation movement. And write this, okay? Non-payment of taxes, very very important, इसको लिख लेना. Non-payment of taxes was
not a part of program ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये ऑफिशियल नहीं था. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इट वाज नॉट ऑफिशियल. हाँ, अगर आपके अंदर देशभक्ति ज्यादा जग गई और आप टैक्स नहीं देना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट कांग्रेस ने नहीं कहा. ठीक है. जैसे पैसिव रेसिस्टेंस बताया ना आपको, द सेम इज हैपनिंग हियर. नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज नॉट द ऑफिशियल मीजर, बट अनऑफिशियली कुछ लोगों ने यूज किया होगा कि नहीं. यस, unofficially it was used, but it was not a official measure. Okay, right, next point, right. Okay, limited 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 cases of civil disobedience were also seen. Limited number of incidents that were related to acts of civil disobedience were also seen. शायद अब आप इस बात को बेहतर समझ पा रहे हो. चंपारण सत्याग्रह वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना. were also seen. अच्छा, गांधी क्या कहेंगे, व्हाट गांधी विल से. देखो, एक्ट ऑफ 1919 आया था, गॉट इट. एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एक्ट इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड इन 1920 में इलेक्शंस हुए, गॉट इट. और इसमें एक प्रोविजन था, द प्रोविजन वाज दैट इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड ऑन एवरी 3 years. इलेक्शन कब होंगे, 3 years इंटरवल पे होंगे, ठीक है ना. तो 1920 के बाद अगले इलेक्शंस कब होंगे, 1923. ये जानना बड़ा जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेचर ऑफ इलेक्शंस एंड ऑल दिस आई विल डिस्कस लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक में, ठीक है. अभी उसमें मैं नहीं इंटर कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल कंफ्यूजन होगा अभी आपको. तो 1920 के बाद अगला इलेक्शन कब होना है, 1923, ठीक है. एनसीएम का फॉर्मल अप्रूवल कब है, दिसंबर 1920. यानी इलेक्शन से अगर आप लेजिस्लेचर के रूप में चुने गए हैं तो आपका काम क्या है, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर. जैसे आज के वर्ड्स में कहूं तो सांसद विधायक हो तो इस्तीफा दे दो, इस तरह की चीज. मेरी बात समझ गया ना. इफ यू आर अ पार्लियामेंट्रियन, इफ यू आर अ लेजिस्लेटर, ठीक है, देन यू आर गिविंग योर रेजिग्नेशन, दिस काइंड ऑफ. तो 1920 के में इलेक्शंस एंड व्हाट वी सी दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज ड्यूरिंग दिस पीरियड 1922 1922, ठीक है, इसी फेज में है. एंड बायकॉट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हियर. सो बायकॉट ऑफ legislatures, boycott of legislatures, this will be an important program. यही तो है passive resistance. Boycott of legislatures is what, passive resistance. कि British colonial structure is an evil structure and now Indians will do non-cooperation with this evil structure, and the idea is that this evil structure will be collapsed by itself, and in this way we will get political swaraj. The same like Duryodhan's army, which was supported by Chaturangini Sena, was supported by some good elements in the army of Duryodhan, who were the man of words. ठीक है, तो उनको चुन चुन के क्या करो, एलिमिनेट कर दो. दुर्योधन की सेना अपने आप खत्म हो जाएगी. एविल स्ट्रक्चर विल कोलैप्स इटसेल्फ. दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस. मेरी बात समझ गया. इसके अलावा क्या होगा, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ओके, यू विल फाइंड 2 words हियर. वन इज, प्रोग्राम में आपको ये 2 words मिलते हैं एंड यू मस्ट नो अबाउट दीज 2 words. वन इज, ओके, वन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स, बट ये वर्ड मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता यूज करना, destructive aspects, and the second part is called constructive aspects. Constructive aspects. Why destructive aspects? Because the methods and programs that will be used here will help in destructing the colonial structure. वो colonial structure को destruct करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे. That's why we are calling it destructive aspects. They will help in the elimination or destruction of this colonial structure. That's why they are called destructive aspects. जैसे जो भी मैंने अभी तक बताया आपको, for example, boycott of foreign clothes, destructive aspect, ठीक है ना. Passive resistance, ये भी क्या है, destructive aspects. अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक है. Passive resistance, this is what, extensive boycott. इसी को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव बायकॉट. लॉ कोर्ट, लेजिस्लेचर, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको बायकॉट करना, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट. ओके. सरेंडरिंग टाइटल्स,
टाइटल्स को सरेंडर कर दो, दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग एज अ डोमेस्टिक एड इन सम ब्रिटिश ऑफिसर्स हाउस रेजिडेंस, ठीक है, आप वो भी जॉब छोड़ सकते हो, दैट इज ऑल्सो व्हाट डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। बट एट द सेम टाइम द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, देखो डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट से क्या मिलेगा, पॉलिटिकल स्वराज, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट से क्या मिलेगा, इकोनॉमिक स्वराज एंड सोशल स्वराज। तो व्हाट विल बी द पॉइंट्स हियर, अब आप गेस कर सकते हो पॉइंट्स क्या होगा, नाउ यू कैन इजीली गेस। ओके, कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट क्या है, तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग टू द पीपल, लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना, टीचिंग देम द आर्ट्स ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, आर्ट्स ऑफ सत्याग्रह, प्रमोशन ऑफ सोशल यूनिटी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करना, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस यूनिटी इन द सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, प्रमोशन के लिए काम करना, राइट जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, राइट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सो दिस विल प्रोमोट सोशल कोहेजन, राइट इसके लिए काम करना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देन प्रमोशन ऑफ, एग्जैक्टली प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स और इंडिजिनस गुड्स, और इसके लिए सबसे बेटर आइडिया क्या है, व्हाट टू प्रोमोट, चरखा शुड बी प्रोमोटेड, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड चरखा शुड बी प्रोमोटेड, ठीक है। फंड रेजिंग यहां पे हो सकता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंड रेजिंग का काम करो, ठीक है। विजिटिंग इन द विलेजेस, रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में जाके लोगों को नेशनल मूवमेंट के बारे में बताना, क्योंकि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में रह रहा है, उसे इतनी समझ नहीं है कि हमारा कोई नेशनल मूवमेंट भी चल रहा है। तो ऑल दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ गांधीयन मूवमेंट, गॉट इट, ये गांधीयन मूवमेंट है। नाउ लुकिंग एट दीज मूवमेंट्स, कैन यू से दैट दीज गांधीयन मूवमेंट्स वर कंट्रोल्ड मास मूवमेंट्स? यस, पहले से जो मूवमेंट चला आ रहा था, क्या उसको एक बेहतर डायरेक्शन दिया गांधीयन मूवमेंट में? Obviously, it gave a proper direction to the ongoing national movement. It made the national movements more inclusive, more participatory, controlled mass movement. So obviously, it may be called great mass movement. इसने क्या किया? Wider participation को ensure किया, हिंदू मुस्लिम unity को बढ़ाया. So why write this? Why great? Why first Gandhian movement is called great? Why great? ये great क्यों है? Why this is great? Okay. There should be some points in your mind, वो खुद भी आप लिख सकते हो। तो it made the mass movements more inclusive, ज्यादा इंक्लूसिव बनाया, more popular and participatory, more popular and participatory, इसका मतलब wider participation of masses were ensured here, wider participation of masses were ensured here, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी इंश्योर की गई, पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया, wider participation of masses was ensured here, and finally the most important thing is what, controlled mass movement। ये मूवमेंट कैसा था, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट था, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, गॉट इट, मोर बैलेंस्ड इन नेचर, मोर बैलेंस्ड क्यों है, बिकॉज वी सी टू एस्पेक्ट्स, डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स and constructive aspects. We see attempts for political swaraj plus economic swaraj plus social swaraj. और गांधी ने कहा कि first we need to get what? Economic swaraj and social swaraj. Then we get political swaraj. आसानी से हमें political swaraj मिल सकता है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। All this is happening, got it? प्रमोशन ऑफ खादी एंड ऑल दिस, स्वदेशी गुड्स विल बी प्रोमोटेड। अच्छा, जब स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करोगे तो व्हाट विल हैपन, कॉटन मिल्स ऑफ इंडिया विल बी प्रोमोटेड, कॉटन मिल्स ऑफ इंडिया विल बी प्रोमोटेड, इंडियन बिजनेस क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगा ना अचानक, पीपल विल स्टॉप परचेजिंग फॉरेन गुड्स, तो डोमेस्टिक डिमांड्स विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है ना। सो कॉटन मिल कैपिटलिस्ट विल बी benefited by this process, उनको सीधा सीधा फायदा होगा। So will they support Gandhian movement? Yes or no? हाँ, देखो वायलेंस नहीं है तो there will be no disruption of trade and commerce,
It's controlled mass movement, no disruption of trade and commerce. So that is the most important thing. कि no violence means what? No disruption of trade and commerce. So this is liked and supported by the business class or the capitalist class. No violence, no disruption of trade and commerce. This will be liked and supported by the business class and capitalist class. वो तो support करेगा ही. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले भी बताया मैंने, फिर से रिलेट करा रहा हूं, दैट इज 1917 रशियन रिवॉल्यूशन. 1917 में क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन. एंड दिस इज फर्स्ट सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड. दुनिया की पहली सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है जो किस चीज की बात करती है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करती है. दिस टॉक्स अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. And in this process of dictatorship of proletariat, what is needed? We all know. Revolution is needed. And in revolution, what is validated? Use of force or violence is validated. जिसमें किस बात को माना गया कि भाई हिंसा थोड़ी बहुत होगी, इससे इनकार नहीं कर सकते. अगर इतना बड़ा चेंज अगर आप लाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, तो देयर विल बी वायलेंस. यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस इज जस्टिफाइड. Here what Gandhi is saying, violence is not justified at any cost. हिंसा किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं. Why with चौरी चौरा violence Gandhi suspended non-cooperation movement? Russian Revolution 1917 में और चौरी चौरा 1922 में है, ज्यादा अंतर नहीं है. So if 1922 if you will not take strict action on violence, what will happen? इस वायलेंस को एक म्यूट सर्टिफिकेशन मिल जाएगा. ध्यान रखना इस बात को. तो हम गांधी को क्रिटिसाइज जरूर कर देते हैं कि आपने मूवमेंट रोक क्यों दिया, ठीक है, लेकिन आप समझो कि गांधी किस आइडिया से इंस्पायर थे, मोटिवेटेड थे कि होने वाले वायलेंस को किसी भी कीमत पे क्या करना है? रोकना है. मेरी बात समझ गए ना? दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडरशिप, ओके, इज अनपैरेलल्ड. आजकल तो लोग बोर्ड पे ही लिख देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और कोई रोकने वाला नहीं है, राइट? सो दैट लेवल ऑफ, यू कैन से दैट विजन एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ टुडे. वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. इसीलिए सब मिलके गांधी को बुरा भला कहते हैं. उनको पसंद ही नहीं आते, ठीक है. जो जो बुरा भला कहता है वो थोड़ा थोड़ा तो समझता है ना गांधी को, ठीक है. सो दिस इज द skills of Gandhi. कुछ limitations भी हैं that I will also discuss. Got it? So this is violence. I hope you have got this. Okay. Now, दूसरी चीज क्या है? 1917 Russian Revolution, Socialist Revolution. It will say what? It will support the idea of class conflict. यहाँ पे ध्यान से समझना है कि क्यों बिजनेस क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास गांधी के सपोर्ट में 1920 में है. सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया था? कैपिटलिस्ट क्लास ने गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था. So it is supporting the idea of class conflict. और गांधी क्या कह रहा है? गांधी believes in the idea of class cooperation. ठीक है. रशियन रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ो, चाइना की हिस्ट्री पढ़ो, कि वहां पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन होने के बाद और चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होने के बाद कितना ब्लडशेड हुआ, कितना हिंसा हुआ, कितना खून खराबा हुआ. जब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ हमारे यहाँ कोई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है. लेकिन सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि हमारे यहां कॉम्युनल राइट्स हुए. आवर फ्रीडम वाज एंश्योर्ड एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया. और जो वायलेंस हम यहां रोकने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों की जान न जाए, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की जान किस में चली गई? कॉम्युनल राइट्स में चली गई, ठीक है. सो दिस कॉम्युनलिज्म इज अ मेजर ब्लॉट ऑन आवर अचीवमेंट्स, ठीक है, कि हमारी अचीवमेंट्स, ठीक है, बेहतर होती अगर हम कॉम्युनल राइट्स को रोक पाए होते. मेरी बात समझ गया ना? क्या मतलब हुआ कि हमने कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन नहीं होने दिया और हिंसा नहीं होने दी, लेकिन कम्युनल वायलेंस में तो हिंसा हो गई. हजारों लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी, बेघर होना पड़ा. तो बात तो वही हुई, किसी ना किसी तरीके से तो लोग मरे ना. तो ये हमारी तो असफलता है. दिस इज आवर फेलियर. We must prevent that communal right and today also. Okay? हमें क्या करना चाहिए? Communal tensions को कम करने की कोशिश करनी चाहिए instead of promoting it. Because what is the solution part?
वी मस्ट नीड टू फोकस। सॉल्यूशन क्या है? हिंदू मुस्लिम, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इनके बीच में झगड़ा होता रहेगा तो सॉल्यूशन क्या है भाई? व्हाट इज द सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन दे दो। सॉल्यूशन इज टू प्रमोट द हार्मनी, सोशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी, यही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ सो दिस आइडिया आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ में आया, ठीक है। दिस मूवमेंट वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, ओके। नाउ what will be the government response towards this movement? Read this. Government's response towards this movement. Government's response towards this movement. Government response क्या? Obviously, this non-cooperation movement, okay, is against the colonial structure, against this colonial structure. This non-cooperation movement is against this colonial structure. ये colonial structure के खिलाफ है, okay. If we are demanding Swaraj, okay, it means we are wanting more political freedom or relaxation. Here we are wanting what? More political freedom and relaxations. But at the same time we are also saying कि अगर हमें स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर नहीं मिला तो वी विल फाइट फॉर आउटसाइड ब्रिटिश एम्पायर. इट मीन्स दिस इज अ क्लियर थ्रेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि स्वराज के दोनों मीनिंग कंबाइन है. So this is also a clear threat for the future presence of British Raj in India. This is also a clear threat for the future presence of British Raj in India. So what British government will do? So you can say suppression. British government will try to suppress the ongoing non-cooperation movement. Very simple. And for suppression, what the government authorities can do? Suppression के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? कांग्रेस कमिटीज को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकता है, मीटिंग्स को क्या कर सकते हैं? प्रोहिबिट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स को क्या कर सकते हैं? बैन कर सकते हैं. इफ यू आर लॉन्चिंग एनी सत्याग्रह, पीसफुल सत्याग्रह, पुलिस में अनाउंस लाठी चार्ज, पुलिस लाठी चार्ज कर सकती है, पुलिस में अरेस्ट यू, पुलिस में अरेस्ट द लीडर्स एंड विल पुट द लीडर्स इन द जेल. दिस आर कॉल्ड एक्ट्स ऑफ सप्रेशन. इसी को हम क्या कहते हैं? एक्ट्स ऑफ सप्रेशन. सो द पुलिस or the colonial authorities will use acts of suppression. ठीक है, वो सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. राइट, यू कैन राइट हियर दैट मीटिंग्स विल बी प्रोहिबिटेड. मीटिंग्स विल बी प्रोहिबिटेड. ओके, मीटिंग्स विल बी प्रोहिबिटेड. ओके, कांग्रेस कमिटीज विल बी डिक्लेयर्ड unlawful. Congress committees will be declared unlawful. Okay. Freedom of press will be restricted. Okay, it means newspapers will be gagged. Okay, freedom of press will be restricted. ठीक है, freedom of press will be restricted. Even peaceful assembling of the masses was not allowed. Even peaceful assembling of the masses was not allowed. Peaceful assembling of the masses was not allowed. Okay, right, next point. Okay, satyagrahis will be arrested, leaders will be arrested and they will put to jail. Satyagrahis will be arrested, leaders will be arrested and finally they will put to jail. Satyagrahis will be arrested, leaders will be arrested and finally they will put to jail. They will put to jail. Got it? Right. All previous methods and strategies that were used in Swadeshi movement will be used here also. All previous movements, all previous methods and strategies that were used in Swadeshi movement will be continued here. ठीक है? All previous methods and strategies that were used in Swadeshi movement will be continued here. तो इसमें लिखने में घबराना नहीं है, ठीक है? पहले जो कुछ भी यूज हुआ वो सारे के सारे तरीके यहाँ भी यूज होंगे. That is the only thing. Got it? Okay, British government will try to suppress this. Okay. अब देखो हमें क्या समझना है कि non-cooperation movement was supported by whom? Who came in full support of non-cooperation movement? This is what we need to understand. So write this.
Write this point first, that extent of participation of masses, extent of participation of masses in NCM, extent of participation of masses in NCM. NCM में किसने participate किया? This we need to understand. Extent of participation of masses during the NCM. ठीक है. तो write first students participation. Students participation. किसी भी मूवमेंट को पॉपुलर और सक्सेसफुल बनाने का काम कौन करेगा? स्टूडेंट्स करेंगे. तो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, रिमार्केबल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सीन. गांधी बाबा ने क्या कहा था? स्कूल्स और कॉलेजेस बायकॉट. मजा आ जाएगा फिर बच्चों को. ठीक है, कॉलेज जाना ही नहीं है, सीधे कहाँ पहुंचना है? आंदोलन में पहुंचना है, मूवमेंट में पहुंचना है. ओके, टीचर्स को भी नहीं जाना है पढ़ाने, सीधे सीधे कहाँ पहुंचना है उनको? मूवमेंट में पहुंचना है. फिर तो मजे आएंगे, फिर सब लोग इकट्ठे होंगे, आंदोलन होगा. ठीक है, लाठियां वाठियां भी चलेंगी. ठीक है, कुल मिला जुला के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वेर इंक्रीजिंग. ओके, दूसरा क्या है? women participation. Women participation, this was also very remarkable. ठीक है, women participation पहले भी था. in Swadeshi movement also women participation was seen, but this much scale of students and women participation was seen for the first time. पहली बार ऐसा हुआ. ठीक है ना, स्वदेशी मूवमेंट से ज्यादा पार्टिसिपेशन था. नाउ पीजेंट पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं? यस. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले गांधी वाज ऑलरेडी अ पीजेंट लीडर, सो पीजेंट पार्टिसिपेशन विल बी वेरी हाई. व्हाट अबाउट द वर्कर्स पार्टिसिपेशन? ओके, यस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स स्वदेशी के पहले, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पहले गांधी वाज द लीडर ऑफ द वर्कर्स आल्सो, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे. नाउ व्हाट अबाउट द एजुकेटेड मिडिल क्लास? एजुकेटेड मिडिल क्लास, अर्बन इंटेलिजेंसिया, यस, दे विल सपोर्ट. सबके सब सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर अ प्रोग्रेसिव ऑर्डर. ठीक है, एग्जैक्टली, प्रोग्रेसिव ऑर्डर के लिए हम फाइट कर रहे हैं. जब इंडिया को स्वराज मिलेगा, सो पार्टिसिपेशन इन जॉब्स, सर्विसेज विल इंक्रीज. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? मुस्लिम पार्टिसिपेशन. राइट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मुस्लिम पार्टिसिपेशन. एक और पॉइंट वहां लिख सकते हो कि दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट दिस मच मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज सीन ड्यूरिंग एनी मूवमेंट. पहली और आखिरी बार इतना ज्यादा मुस्लिम पार्टिसिपेशन यहां देखा गया. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. इट मीन्स, वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी अ रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस मूवमेंट? यस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट का सबसे रिमार्केबल फीचर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी. गॉट इट? एंड इन विच दिस मूवमेंट वॉज वॉट? non-cooperation movement was supported by Indian National Congress, therefore it was all class movement, all India movement. ये movement क्या था? all class, all India movement. Very simple. It was supported by Indian National Congress, so it was all class movement, all India movement. स्वदेशी movement all India था क्या? नहीं. तो स्वदेशी movement को हमने first mass movement का और इसको first great mass movement का, this is also one reason. ठीक है ना, कि दिस इज व्हाट? ऑल इंडिया मूवमेंट, ऑल क्लास मूवमेंट. ठीक है. इन विच स्टेट्स दिस विल बी मोर पॉपुलर? देखो, ऑल इंडिया मूवमेंट है, बट विल देयर बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मूवमेंट? हर जगह एक जैसा पॉपुलर होगा? नहीं, कहीं कोई मूवमेंट ज्यादा पॉपुलर होता है, कहीं कम होता है. ओके, तो यू कैन राइट दिस दैट इट वाज मोर पॉपुलर इन सम स्टेट्स, लाइक इट वाज मोर पॉपुलर इन सम स्टेट्स लाइक. अब यहां पे रट्टा नहीं मारना है, कॉमन गेस. हाँ, सबसे पहले तो गांधी जहां जहां गए, पहले वो सारे स्टेट्स लिख लो. बिहार में होगा? यस, बिहार. ठीक है, गुजरात. अच्छा, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, ये तो एकदम सेंटर में था पॉलिटिक्स के. ठीक है. अच्छा, पंजाब अमृतसर रीजन होगा कि नहीं? यस, वहां पे वो जालियांवाला मैसेकर हुआ, रौलट सत्याग्रह, याद है आपको? ठीक है, दिस पॉइंट, ये तो मेन स्टेट्स हैं. इसके बाद इफ आई वांट टू राइट सम नेम्स, ठीक है ना, तो विच नेम्स यू विल राइट? ठीक है, कौन से नेम आप लिखोगे? गेस करो.
हाँ बंगाल, वेरी गुड, बंगाल। बिहार हो ही गया। साउथ इंडिया जाओगे तो क्या हो जाएगा? मद्रास। बॉम्बे लिखना पड़ेगा कि नहीं? यस, बॉम्बे लिखना पड़ेगा। और इसके बाद अपने अपने स्टेट्स का नाम लिख लो, गलत कुछ भी नहीं। ठीक है। राजस्थान लिख सकते कि नहीं? हाँ लिख सकते भाई, राजस्थान लिखो। इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट राइट दिस असम। ठीक है, असम भी लिख लो। ठीक है, आंध्र प्रदेश भी लिख लो, कर्नाटका भी लिख लो। ठीक है, बट शुरू वाले स्टेट्स क्या थे? दे आर मोर पॉपुलर। कॉमन गेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, बिहार, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, गुजरात, राजस्थान, है ना? मद्रास के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कुछ ऐसे लिख लो। नॉर्थ ईस्ट में एक दो स्टेट लिख लो, बट इट वाज द मोर पॉपुलर एरियाज। ठीक है ना? तो इट इज कवरिंग अ लार्जर एरिया इन कंपैरिजन टू द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है ना? बट व्हाट हैपेंड, दिस movement was in progress, non cooperation movement was in progress, एनसीएम was in progress। 1920 हो गया, और गांधी बाबा ने क्या कहा था? स्वराज विद इन 1 ईयर। 1921 निकल गया। ठीक है, आप सब लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया इस उम्मीद में कि स्वराज विद इन 1 ईयर। ठीक है, लिखते हैं ना कुछ लोग। ठीक है, टारगेट आईएएस विद इन 1 ईयर। ठीक है, 2 साल में बन जाओ यार, इतना कसम क्यों खा के चलना है? विद इन 1 ईयर। तनाव का जीवन जीने से अच्छा विद इन 1 ईयर की जगह लिख दो विद इन 2 ईयर। ठीक है, घर परिवार के लोगों से मिलते रहो। ठीक है, एकदम खुश रहो, और 1 साल की जगह 2 साल में आईएएस बन जाओ, क्या क्या बुरा हो जाएगा? ठीक है, या आईएएस नहीं भी बन जाओगे तो दुनिया चलनी रुक जाएगी क्या आपके बगैर? ठीक है, चलिए, तो स्वराज विद इन 1 ईयर। अब क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड मास मूवमेंट, डू यू थिंक प्रोलॉन्ग्ड मास मूवमेंट आर देयर द चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मास मूवमेंट? नो। अगर कोई भी मास मूवमेंट बहुत लंबा खिंच जाएगा तो उसके सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सपोज यू ऑल पीपल आर लिविंग इन दिल्ली, और हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि कुछ ऐसा करते हैं धमाकेदार, कुछ रिवॉल्यूशनरी करते हैं, चलो आज प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर। आप लोग आ जाओगे, कोई करोल बाग से, कोई मुखर्जी नगर से। मैं कहूंगा कल भी आ जाओ, 2 दिन आ जाओगे, 3 दिन आ जाओगे, चौथे दिन कहोगे मास्टर पागल हो गया है। ठीक है, हमारे पास यही काम है क्या कि रोज रोज प्रोटेस्ट करते रहे? इसका मतलब यू विल रेस्पेक्ट, यू विल कम फॉर 1 डे, ओके, 2 डे, 5 डे, बट देर इज अ लिमिटेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल से अब नहीं, हमारा खुद का काम प्रभावित हो रहा है। दिस विल हैपन और नॉट? Obviously, the people are filled with nationalist sentiments, but if this movement will be prolonged movement, बहुत ज्यादा होता चला जाएगा, तो mass participation will keep on declining। पहले दिन पता चला 100 लोग हैं, 80 लोग हैं, 70 लोग हैं, 60 लोग हैं, mass participation will keep on declining। prolonged mass movements की ये सबसे बड़ी कमी होती है, एंड गांधी was knowing this, गांधी ये बात जानते थे। और मूवमेंट क्या हो रहा था? prolonged हो रहा था। And now extremists will ask question, Gandhi Baba, 1 year निकल गया, and what you have said, Swaraj within British Empire if possible and not possible outside British Empire। तो मेथड कब बदल रहे हो अपना? And this question is a difficult question. It will very difficult for Gandhi to answer this question। देखो, इन सारी चीजों पे लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन कितना लॉजिकल है कि अगर आपने कहा स्वराज विद इन ब्रिटिश एम्पायर इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आउटसाइड ब्रिटिश एम्पायर, और ये भी कहा स्वराज विद इन 1 ईयर। अब ये टाइम निकल गया, तो लोग कहेंगे गांधी बाबा चेंज करो मेथड को, आपने कहा था स्वराज आउटसाइड ब्रिटिश एम्पायर इफ नेसेसरी। अब गांधी कहेंगे यार बोल तो दिया था, अब करें क्या? चेंज कैसे करें? तो एक चैलेंज गांधी के साथ है, that now the mass movement, read this, now the mass movement had become a prolonged mass movement। prolonged mass movement, अब mass movement क्या हो रहा था? It was a prolonged mass movement, and we know that you can write here that the capability or capacity of the masses, capability or capacity of the masses to support prolonged mass movement is limited। prolonged mass movement इज लिमिटेड। लोगों की एक कैपेसिटी जो होगी ना वो लिमिटेड होगी।
गांधी बाबा ने कहा था मैन एंड वुमेन बोथ शुड कम। ठीक है, घर पे रोटी कौन बनाएगा भाई? ठीक है, if men and women both will participate and it will be a long mass movement, so what will happen? There will be a lot of problems. The problems now are coming. The people are asking questions. लोग गांधी से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आजादी मिली नहीं। People had a lot of expectation. कई लोग बहुत बड़े लॉयर थे, उन्होंने लीगल प्रोफेशन छोड़ दिया, कहा नहीं अब हम आंदोलन करेंगे, उनका भी काम धंधा रुक गया। जो बच्चा ग्रेजुएशन पार्ट 1 में था, ठीक है, उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, अब तक वो ग्रेजुएट हो गया रहता, पार्ट 1 खत्म हो गया रहता, तो अब लोग परेशान तो थे ही है। लोगों ने जॉब भी छोड़ दिया था, उनको लगा बस भारत 1 साल में आजाद होने वाला है, हुआ कुछ नहीं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड, राइट दिस, on 5th Feb 1922, on 5th Feb 1922, a tragic incident took place in Chauri Chaura. Tragic incident took place in Chauri Chaura. Chauri Chaura. 5th Feb 1922, a tragic incident took place in Chauri Chaura. ठीक है, चौरी चौरा। चौरी चौरा में क्या हुआ 5th Feb 1922 को? देखो, मैंने क्या कहा था कि द पीपल विल डू व्हाट, पीसफुल प्रोटेस्ट। लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ब्रिटिश अथॉरिटीज डिड व्हाट, ब्रिटिश अथॉरिटीज क्या करती थी? दे सप्रेस पीसफुल प्रोटेस्ट, दे ओपन लाठी चार्ज ऑन दीज पीसफुल प्रोटेस्ट। यहां पे भी वही हो रहा है। द पीपल इन चौरी चौरा गोरखपुर वेयर डूइंग अ पीसफुल मार्च। लोग एक पीसफुल मार्च कर रहे थे, रैली कर रहे थे, इट वाज अ पीसफुल मार्च। एंड व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ पुलिस स्टेशन एंड द पुलिस अथॉरिटीज, okay, dealt with them, okay, in a difficult manner. They opened lathi charge, right? This police authorities opened lathi charge. It means they tried to suppress this peaceful march, right? This they tried to suppress peaceful march. They tried to suppress this peaceful march. Got it? Okay. Now what will happen? Read this. The satyagrahis reacted in a violent manner. The satyagrahis reacted in a violent manner. The satyagrahis reacted in a violent manner. Got it? The satyagrahis reacted in a violent manner. And read this, they burnt the police station. They burnt the police station. They burnt the police station in which 22 policemen were killed. In which 22 policemen were killed. In which 22 policemen were killed. Got it? Now tell me that this is what? use of violence during non-cooperation movement. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन जलाया जिसमें 22 पुलिसमैन वर किल्ड. सो राइट, दिस वाज अ केस ऑफ use of violence. This was a case of use of violence during non-cooperation movement. This was a case of use of violence during non-cooperation movement. ये तो use of violence का केस है non-cooperation movement. And when movement started, what Gandhi said? That stricter use of non-violence. We will not compromise with, okay, non-violence. So read this. यही था cornerstone. क्योंकि whenever you will talk about satyagraha, so non-violence is the key idea in this satyagraha principle. सत्याग्रह प्रिंसिपल में द की आइडिया इज व्हाट, नॉन वायलेंस. सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नॉन वायलेंस ही है. एंड हियर दिस नॉन वायलेंस हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. नॉन वायलेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ. नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ गांधी रिएक्टेड टू दिस सिचुएशन, हाउ गांधी रिएक्टेड टू दिस सिचुएशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो read this. Gandhi announced that non-cooperation movement is suspended. Gandhi announced that non-cooperation movement is suspended. Gandhi ने announce कर दी that non-cooperation movement is suspended. Got it? This was a sudden announcement.
made at the individual level. ठीक है ना? Gandhi announced that non-cooperation movement is suspended. Got it? Now what will happen? याद रखना इस डेट को, चौरी चौरा इंसिडेंट, द ईयर इज व्हाट, 5th Feb 1922, याद रखना है. एंड राइट द नेक्स्ट इवेंट इज राइट, यहां पे एक डेट है. यस प्लीज आस्क. यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में. बिहार मैंने बोला है क्या? नहीं ना? हाँ हाँ, चौरी चौरा गोरखपुर में है. दिस इज अ प्लेस. ठीक है ना, चौरी चौरा. ओके, नाउ रेड दिस. यहाँ पे देयर आर 2 डेट्स, तो एक बार आसपास लिख लोगे तो याद रहेगा आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा. बिकॉज इन प्रीलिम्स such kind of technicalities we should know. 5th Feb 1922. This date is important for what? Chauri Chaura incident. This date is important for Chauri Chaura incident. And read this, 12th Feb 1922. 12th Feb 1922. Okay, it means after 7 days. 12th Feb 1922. Okay, right. An announcement right, this a formal announcement was made. A formal announcement was made. And what was this formal announcement? ठीक है, इसका मतलब अब ये मतलब INC भी कह रही है इस बात को. Finally they are in sync with Gandhi's ideas. A formal announcement is made, and this announcement is what? NCM is suspended. NCM is suspended. NCM is suspended. But this date is important for a one prelims question जो PYQ है, तो that's why I am discussing. यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ. What is that PYQ? देखो, there is a PYQ that is related to Bardoli resolution. ये पहले पूछा गया है, तो write this question. Bardoli resolution. Bardoli resolution. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ. बारडोली रेजोल्यूशन. ठीक है, रेजोल्यूशन. ओके, रेजोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हो. बारडोली रेजोल्यूशन. डेट इज व्हाट? 12th Feb 1922. It means that Congress working committee meeting will take place at a place that is Bardoli, and that in that CWC meeting a proposal will be passed, and that proposal is called Bardoli resolution. मेरी बात समझ गया? Why it's called Bardoli? Because CWC meeting, Congress working committee meeting took place in Bardoli. Congress working committee meeting took place in Bardoli, and a resolution was passed here, right? A resolution was passed here. CWC meeting will take place in Bardoli, and a resolution will be passed here. इस resolution को हम कहते हैं Bardoli resolution. और इस resolution में दो बातें थी. There are two important points here in this resolution that we must know. Read this. There are two important points. वो two important points क्या है? Okay. So the first I have already discussed, that a formal announcement is made. A formal announcement is made that NCM is suspended. A formal announcement is made that NCM is suspended. ठीक है, formal announcement is made that NCM is suspended. Got it? दूसरा क्या है? What is the second important point? So that is very important. दूसरा point देखो बता रहा हूं क्या है. There was a confusion among the people. लोगों के अंदर confusion था किस बात को लेके? जैसे देखो, स्वदेशी मूवमेंट में पैसिव रेसिस्टेंस को लेके कंफ्यूजन था. पैसिव रेसिस्टेंस the people were using or not? Yes, they were using, but it was not formally approved. मेरी बात समझ गया ना? यही था ना. यहां पे क्या कंफ्यूजन है समझो इस बात. एनसीएम स्टार्ट कब हुआ है? 1920 में. 1 year है पास, 1921. क्या स्वराज मिला? स्वराज नहीं मिला. Civil disobedience at a very limited scale was followed here or not? Yes, it was followed. During this period, non-payment of taxes, was it a part of program? No, non-payment of taxes प्लान का हिस्सा नहीं था. बट जैसे ही एक साल पूरा हुआ और स्वराज नहीं मिला, तो लोगों के बीच में डिस्कशन होने लगा. आईएनसी लीडर्स के बीच में भी डिस्कशन होने लगा कि क्या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज किया जाए. बिकॉज अब स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है. एक साल बीत गया, 1 year have passed, we did not have got स्वराज.
तो देयर इज अ नीड टू चेंज द स्ट्रेटजी। तो क्या हम सिविल डिसोबीडियंस को एक नई स्ट्रेटजी के रूप में ले आए क्या? इसको नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को अनाउंस किया जाए क्या कि लोग टैक्स देना बंद करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को? ऐसा डिस्कशन चल रहा था, बट इस डिस्कशन का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। कांग्रेस ने कोई अपना ऑफिशियल बयान नहीं दिया था, तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन था। तो जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा, अनाउंस हुआ, एनसीएम वाज स्टॉप्ड, तो मेनी पीपल थॉट दैट नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी विल डू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस नाउ। अब हम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देंगे। वैसे नहीं देने में तो मजा आएगा ही, पैसा बच जाएगा आपका, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो कांग्रेस ने ये क्लैरिफिकेशन किया बारडोली रेजोल्यूशन, दैट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लान ऑफ एनसीएम। दूसरी चीज, INC is not asking the people to follow this visa. You will keep paying taxes as always. ठीक है? और आगे की फ्यूचर स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। ये बात कहाँ कहा गया? बारडोली रिजोल्यूशन में। यानी पिक्चर को क्लियर किया गया कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्लान पहले भी नहीं था और आगे यूज होगा कि नहीं हम बाद में बताएंगे। ठीक है? यू विल कीप पेइंग टैक्सेस एज यूजुअल। तो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस वाज अ पार्ट ऑफ प्लान और नॉट? तो आप क्या कहोगे? नो, ये नहीं था। और ये बारडोली रिजोल्यूशन का भी एक इंपॉर्टेंट आउटकम हो गया। सो राइट द सेकंड पॉइंट हियर, बारडोली रिजोल्यूशन में राइट, INC clarified it that INC clarified it that INC clarified it that Bardoli resolution, second important point, INC clarified it that non-payment of taxes was INC clarified it that non-payment of taxes was non-payment of taxes was not a part of official plan of INC during NCM, not a part of official plan of INC during NCM, and the people will keep paying taxes as usual, and the people will keep paying taxes as usual. लोग टैक्स क्या करते रहेंगे? देते रहेंगे पहले की तरह। अच्छा, नाउ आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, आपको जज करना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दिस मेथड वाज यूज्ड एट एन अनऑफिशियल लेवल or a limited scale. Yes, officially non-payment of taxes was not a part of plan. तो ये बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें जिनको हमें समझना है। पैसिव रेसिस्टेंस हो या ये इशू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बारडोली रिजोल्यूशन समझ में आया। नाउ दीज टू डेट्स तो हमने देख लिए, 5th Feb 1922 एंड द सेकेंड डेट 12th Feb 1922। नाउ गांधी सेड व्हाट? गांधी अगेन सेड दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करना, इट वॉज अ ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। का मुझे शुरू करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है? लोगों ने कहा क्यों भाई? तो गांधी का वही जवाब है कि पीपल आर स्टिल नॉट प्रॉपरली स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ सत्याग्रह। ठीक है? कि अभी लोगों को सत्याग्रह का मतलब ठीक से समझ में नहीं आया। ठीक है? जिन्ना तो 1920 में ही छोड़ चुके थे कांग्रेस। कहा मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट है क्या सत्याग्रह का। ठीक है? तो गांधी खुद कह रहे हैं कि अभी लोगों को लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया। ठीक है? तो अभी टाइम लगेगा। तो इट वाज अगेन अ ग्रेट मिस्टेक। सो रेड दिस, गांधी again admits that launching NCM was one of his mistakes. Launching NCM was one of his mistakes. Okay? यहां भी कहते हैं वो कि it was like one of his mistakes. One of his mistakes because people are still not properly skilled, because people are still not properly skilled in the arts of satyagraha. गांधी के अपोनेंट्स क्या कहेंगे? कहेंगे गांधी को फिल्म का हीरो बनाना यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो नहीं करनी थी। राइट? बिकॉज व्हाट एक्सट्रीमिस्ट विल से, रिवॉल्यूशनरीज विल से कि अच्छा हमने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट सस्पेंड कर दिया और गांधी ने आगे चल के अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू रिवाइव रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। ऐसा लग रहा है कि गांधी के तरीके से आजादी नहीं मिलने वाली है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। गॉट इट? सो द पीपल आर आल्सो वेरी मच डिसअपॉइंटेड। अब एक स्टेटमेंट है दैट इज ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स, राइट दिस,
Subhash Chandra Bose opinion. Subhash Chandra Bose was also not happy. He was dissatisfied by this Gandhi's decision. गांधी के डिसीजन से वो खुश नहीं थे. Okay, and Gandhi compared this decision of withdrawing NCM as national. Sorry, Subhash Chandra Bose compared this decision of suspension of NCM as a national calamity. सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है. This decision is not good. This is like a national calamity. This is what Subhash said. कि ये तो national calamity है. ठीक है. This is like national calamity. Okay. तो इसका मतलब क्या है? Read this. Many important leaders of INC were not happy with Gandhi's decision. Many prominent leaders of INC were not happy with Gandhi's decision. Many prominent leaders were not happy with Gandhi's decisions. क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये मूवमेंट रुका नहीं होता, कंटिन्यू हो जाता, तो शायद इससे इंडिपेंडेंस या आज़ादी ही मिल जाती. मेरी बात समझ गया ना? दे वर थिंकिंग दैट अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू हो जाता तो हमें आज़ादी मिल जाती. तो सस्पेंड करना सबसे बड़ी भूल थी. गॉट इट? दिस इज द आइडिया. नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस सस्पेंशन? व्हाट विल हैपन? सस्पेंशन के बाद गांधी ने क्या कहा कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ 22 पुलिसमैन इन चौरी चौरा. का मूवमेंट मैंने स्टार्ट किया था. हु इज रेस्पॉन्सिबल? आई एम रेस्पॉन्सिबल. ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कहा अच्छा ये बात तुम ही कह रहे हो, आई एम रेस्पॉन्सिबल, तो चलो फिर ठीक है. देन व्हाट हैपेंड? गांधी वाज अरेस्टेड. 12th Feb को है बारडोली प्रपोजल एंड व्हाट वी सी दैट 10th of March, at 10th March, ठीक है, 1922 गांधी वाज अरेस्टेड. गांधी को अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वाज सेंट फॉर 6-year imprisonment. 6-year imprisonment. 6-year imprisonment. And Gandhi will say that jail is my second home. I am always ready to go to jail. 6 years के लिए भेज दिया, but finally he will be released. ठीक है, in Feb 1924. पहले ही छोड़ दिया जाएगा. He was jailed for 6 years, but he was released in Feb 1924. यहाँ पे ये रिलीज हो जाएंगे. Feb 1924 Gandhi is released. And then he will attend Belgaum session, Indian National Congress. Belgaum session I will discuss later. Belgaum session 1924. ठीक है ना? Where Gandhi was the president. तो जेल में गए ये 6 years के लिए, पहले आ गए 1924 में on account of ill health. ठीक है, ये हेल्थ अच्छा नहीं रह रहा है तो गांधी को जेल से रिलीज कर देते हैं. तो ये होता है. Now Gandhi is released here. Now this will start a new discourse. ठीक है, कि what to do after the suspension of non-cooperation movement. क्या किया जाए? ठीक है, गांधीयन पॉलिटिक्स तो शुरू हुई, बात तो सही है, 1922 non-cooperation movement. So after this what? Movement has been suspended. So what will happen? That this revolutionary activities will revive again. This is one part. Revolutionary activities will revive again. ठीक है ना? And you can say that 1922 to 1930, this phase is the second phase of revolutionary activities. Second phase of revolutionary activities. ये होगा. We will discuss it separately in one chapter. कि revolutionary activities first phase और second phase क्या है. दूसरी चीज, the second important point will what? Okay, Russian revolution कब हुआ है? 1917. So do you think that the influence of socialist ideas will also be seen on Indian national movement? Yes. Okay, so this will also happen. So read this. After 1920-22 we see growing influence of socialist ideas on Indian national movement. ये भी होगा. We see the growing influence of socialist ideas on Indian national movement, जिसको एक अलग चैप्टर बना के देखेंगे. जैसे some important facts you all know. HRA कब बना था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924. आगे डिस्कस करूंगा.
The same HRA was later reorganized and renamed in the form of HSRA in the year 1928. HRA means Hindustan Republican Association or Army, and HSRA means what? Hindustan Socialist Republican Association or Army. ये एक एग्जाम्पल है जो ये बता रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। और ये सब क्यों हो रहा है? रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से। अच्छा, वायलेंस के यूज होने पे गांधी ने मूवमेंट क्यों रोका? क्योंकि ये बात उन्हें समझ में आ रही थी, ठीक है, कि जो आइडिया पॉपुलर होगी उसमें क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का कॉन्सेप्ट है, यूज ऑफ वायलेंस इज व्हाट एक्सेप्टेड, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा बताओ, वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और भारत आजाद भी हो जाता है, तो भारत को आगे लेने की जिम्मेदारी, ले जाने की जिम्मेदारी किस पे होगी? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास पे। और अगर इंडिया में ही इंडियन वर्कर और इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास इफ दे कन्फ्रंट ईच अदर, ठीक है, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ पाएगा नहीं। फिर आपको दूसरे देश से देखना पड़ेगा कि हमें हेल्प और सपोर्ट ले, और जब आप दूसरे देश से हेल्प और सपोर्ट लोगे तो वो दौर हो जाएगा नियो कॉलोनियलिज्म का दौर। वहां पे दूसरे देश हमेशा क्या करेंगे, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख के आपको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो गांधी वॉज अंडरस्टैंडिंग दिस की क्लास कोऑपरेशन बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज जो थी, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो भी इमर्ज हुई, ओके, आप देखोगे कि उनका कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है नेशन के ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। ओके, बॉम्बे प्लान 1944 जो मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि इंडियन कैपिटलिस्ट एंड द बिजनेस क्लास सजेस्टिंग दैट इंडिया शुड अडॉप्ट अ प्लानिंग मॉडल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इंडिया में इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास कह रहा था कि अगर प्लान्ड मॉडल से, सोशलिस्ट मॉडल से बेहतर विकास इंडिया का हो सकता है तो वो हमें करने की जरूरत है। क्यों वो कह रहा था? बिकॉज दे बिलीव दैट, कौन सी आइडिया को हम आगे लेके चल रहे हैं, क्लास कॉपरेशन के आइडिया को लेके चल रहे हैं। तो किसी एक इकोनॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट कर लेने से हमारा जो सोशल फैब्रिक है, इकोनॉमिक फैब्रिक है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। गॉट इट? दिस इज द प्लान हियर। नाउ द थर्ड पार्ट इज व्हाट? द थर्ड पार्ट, राइट दिस, देखो 1919 एक्ट के बारे में बताया आपको, एक्ट ऑफ 1919। तो इलेक्शंस वेर टू बी कंडक्टेड ऑन 3 years इंटरवल, 3 साल के इंटरवल पे इलेक्शन होने थे। यानी एक इलेक्शन 1921 में है एंड देन द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी इलेक्शन 2 1923। यही है ना इलेक्शन का पैटर्न। अब ये बताओ कि दिस इलेक्शन, ओके, ड्यू टू दिस पैसिव रेसिस्टेंस टेक्निक, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर, ये एक स्ट्रेटेजी था, लेजिस्लेचर्स वेर बायकॉटेड, बायकॉट ऑफ लेजिस्लेचर को फॉलो किया गया। नाउ एनसीएम वाज एंडेड, एनसीएम खत्म हो चुका है 22 में, elections will be conducted in 1923. Now Indian leaders will ask that what we should do now. Non-cooperation movement has ended. So should we boycott legislature or should participate in elections? ये सवाल आएगा कि नहीं, बताओ। जब तक मूवमेंट चल रहा था तो मूवमेंट की एक स्ट्रेटेजी थी, व्हाट इज दैट? boycotting legislatures. Now movement is suspended. 1923 elections will be conducted. Okay, so there will be a debate among nationalist leaders that INC should contest elections or not. Indian leaders should contest elections or not. In this way, a new debate will come. And as a result of this new debate, a new political party will be formed that is called Swaraj Party. And the politics is called Swaraj Party politics. Clear? So this is the next space. So write this, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स। यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल, अभी आपको पूरा नहीं समझ में आएगा, दिस इज वेरी इजी टॉपिक, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स 1923 से लेकर, रेड दिस, 1928-29 तक स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है ना। अभी विल टॉक इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन सा टॉपिक हमें कंटिन्यू करना चाहिए अभी फिलहाल? रिवॉल्यूशनरीज विल डिस्कस लेटर, दिस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियाज इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो विच टॉपिक वी शुड कंटिन्यू नाउ? स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो ये बात हम समझ पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स। So this will be our new topic.
and there are so many issues that are associated with Swaraj Party politics. I will discuss with you all. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको इश्यूज मिलेंगे, ठीक है, जो आगे नेशनल मूवमेंट से रिलेट होंगे 1930s, और ये सारे इवेंट्स क्या है देखो, अब आपको ऐसे भी देखना है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन 1880s 90s, ठीक है, या ऐसे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग, ठीक है, दिस पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट in 1920s, national movement in 1930s, national movement in 1940s. तो when you will understand the entire theme, आप आसानी से लिख सकते हो. Got it? 1920s में क्या है नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट में? एक बात तो आप जान ही चुके हैं, क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देन द नेक्स्ट विल बी स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स. देन द नेक्स्ट विल बी एंटी साइमन एजिटेशन, नेहरू रिपोर्ट, ओके, जिन्नास 14 पॉइंट फॉर्मूला. There are so many things that we'll discuss here. So when I will discuss the events and story with you, you can write difficult questions like this also. जैसे मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, trace out the development of national movement during 1930s and 40s, तो फिर तो तारे गिनने लगोगे अगर आप रट के जाओगे तो. और अगर रट के नहीं जाओगे, अगर आप टॉपिक को समझोगे तो यू विल क्रिएट स्केच ऑल्सो, डायग्राम ऑल्सो, ठीक है, और जितने वर्ड में लिखना होगा उतने वर्ड में आप अपनी बात को आसानी से कह सकते हो. दैट इज द बेसिक आइडिया, ठीक है ना. तो इसके लिए हमें समझ बनानी जरूरी है. वंस यू डिस्कस यू कैन राइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. गॉट इट? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आज की क्लास में पूछ लीजिए. स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स विल स्टार्ट टुमारो. यस प्लीज. अभी क्या है ना कि जैसे देखो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है. जैसे अभी आपको 1920s की पूरी पॉलिटिक्स में बताऊंगा ना, ठीक है ना, तो अब कई सारे नए पॉलिटिकल पार्टीज का नाम मिलेगा. जैसे स्वराज पार्टी है, देयर आर सो मेनी कोalitions आल्सो, ठीक है. गॉट इट? जैसे आपको पिछली बार मैंने बताया था, ये क्या नाम है, अरे होम रूल लीग बताया था. दैट होम रूल लीग बिकम स्वराज सभा, और फिर स्वराज सभा कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है, ठीक है ना. तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कोalitions, इलेक्शन पॉलिटिक्स, जैसे ये जान लोगे तो ये बात आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है ना. गॉट इट? तो हियर आई विल डिस्कस इलेक्शंस, ठीक है, द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है ना. गॉट इट? अभी तो सिर्फ हमने एक पार्टी का नाम जाना ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. अब ये तीसरी पार्टी का नाम आप जानने जा रहे हो, स्वराज पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है. तो धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, वो सब लेक्चर का हिस्सा है. गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? एनी वन ऑफ यू? नहीं? चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में. ये सारे आपको मिलेगा, ठीक है ना, इन द क्लास इटसेल्फ वी विल डिस्कस एवरीथिंग. और कोई क्वेश्चन? वेलकम. चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.